پیپلز لبریشن آرمی کے 98ویں یوم تاسیس پر GHQ میں تقریب۔ چین کے سفیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ چینی دفاعی اتاشی میجر وانگ یونگ کی تقریب میں شرکت۔ ISPR کے ترجمان کے مطابق تقریب میں سفارت خانے کے حکام اور مسلح افواج کے افسران کی بھی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چینی مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ یوم تاسیس پر PLA کو مبارکباد دی اور کہا بدلتی اسٹریٹجک صورتحال کے باوجود پاک چین دوستی غیر متزلزل ہے۔ چینی سفیر نے تقریب کے انعقاد پر فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان نے بھارتی لوک سبھا میں آپریشن سندور سے متعلق بیانات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی میڈیا بریفنگ کہا کہ بھارتی رہنماؤں کے الزامات اور اشتعال انگیز دعوے بے بنیاد ہیں۔ بھارتی بیانات حقائق مسخ کرنے اور جوہریت کو جواز دینے کی کوشش ہیں۔ آپریشن مہادیو سے متعلق بھارتی دعوے پاکستان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ بھارتی وزیر داخلہ کا بیان جھوٹ اور کہانیوں پر مبنی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا نے 9 مئی کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے جوڈیشل کمپلیکس میاں والی کے مقدمے میں 51 ملزمان کو سزا سنا دی۔ ملک احمد خان بچھر، بلال اعجاز، احمد چٹھا سمیت 51 ملزمان اشتہاری قرار۔ گرفتار ملزم محمد اسماعیل کو 25 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ عدالت کی پولیس کو 1 ماہ میں ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کی ہدایت۔ 9 مئی کے واقعات کے 3 مقدمات کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ تینوں مقدمات میں مجموعی طور پر 195 ملزمان کو سزائیں، 88 کو بری کر دیا گیا۔ شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل، کنول شوزیب اور شیخ رشید شفیق کو تینوں مقدمات میں 10 سال کی سزا، ملزمان کو 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تفصیلی فیصلے میں زین قریشی، فواد چودھری، خیال کاسترو کو تینوں مقدمات میں بری کر دیا گیا۔ ایرانی صدر کا 2 روزہ سرکاری دورہ، کل پاکستان پہنچیں گے۔ مسعود پزشکیان وزیر اعظم کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر کے ہمراہ وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی پاکستان آئے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق ایرانی صدر اپنے قیام کے دوران صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ امریکہ کی بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو رعایت 19% ٹیرف عائد کر دیا۔ بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ جنوبی ایشیا کے 3 بڑے ملکوں میں سے پاکستان کو سب سے زیادہ رعایت دی گئی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جنوبی افریقہ پر 30%، سوئٹزرلینڈ پر 39%، ترکی پر 15% ٹیرف عائد کیا گیا، جبکہ مشرق وسطی میں امریکہ کے انتہائی قریبی اتحاد اسرائیل پر 15% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ امریکی ٹیرف کے جھٹکے سے ایشیائی مارکیٹس مندی کا شکار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عالمی سطح پر نیا تاریخی ٹیرف نافذ۔ ایشیا پیسیفک ریجن کی بڑی مارکیٹس میں سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بڑا دھچکا پہنچا۔ جاپان، جنوبی کوریا اور تائیوان کے انڈیکس سرخ زون میں داخل۔ کاروباری حلقے اس صورتحال کو ٹیرف شاہ قرار دے رہے ہیں، جو مستقبل قریب میں عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات۔ بلوچستان کی ترقی اور مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی صدر مملکت کو صوبے میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ۔ صدر آصف علی زرداری نے بلوچستان میں امن و امان مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ کہا کہ عوامی فلاح، بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ پولیس اور CGD کا بنو میں آپریشن، 6 دہشت گرد ہلاک۔ میریان میں پولیس اور CGD کا دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مکمل تباہ کر دیا۔ RPO بنو ساجد خان کے مطابق گزشتہ رات سے جاری آپریشن میں 6 دہشت گرد ہلاک اور 3 کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ 25 مشتبہ افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ رحیم یار خان میں پولیس کی چوکی پر ڈاکوؤں کا حملہ، 5 اہلکار شہید، 2 زخمی۔ ڈاکوؤں نے شیخانی پولیس چوکی راکٹوں سے حملہ کیا تھا۔
तर्जुमान पुलिस का कहना था कि फायरिंग के तबादले में एक डाकू भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकारों में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद खलील, कांस्टेबल नखीर, गजनफर अब्बास शामिल हैं। इस साल ये यौम आज़ादी के 14 दिन मार्का हक को याद करते हुए मना रहे हैं। उन 3-4 दिनों में हमारी कौम ने साबित किया कि जब मुल्क पे कोई मैली नज़र से देखता है तो हम सब मुत्तहद होते हैं। पूरी कौम मुत्तहद होके, ना उन्होंने ज़बान की तफरीक देखी, ना मजहब की तफरीक देखी, ना पेशे की तफरीक देखी, ना उम्र, ना जेंडर की कोई तफरीक थी, सब इकट्ठे थे और इसी वजह से हमें भरपूर कामयाबी हुई। इस कामयाबी पे एक बार फिर, इसलिए कि हम यौम आज़ादी आज से मना रहे हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। कराची में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया। मार्का हक में फतह के पेश नज़र जश्न आज़ादी को पुरजोश अंदाज में मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने भारत को ऐसी शिकस्त दी कि वो कभी नहीं भूलेगा। भारत ने फिर साजिश की तो उससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस पर चीनी अवाम और मुसल्लह अफ़वाज को मुबारकबाद। कहा कि चीन की मुसल्लह अफ़वाज का कौमी और आलमी अमन के लिए किरदार काबिल तहसीन है। हम अपने आहनी भाई को सलाम पेश करते हैं। मरीम नवाज ने कहा कि पाक चीन दिफाई इश्तराक लाजवाल दोस्ती की रोशन अलामत है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की पेशेवराना महारत, जदीद अस्करी हिकमत अमली और कौमी खिदमत का जज्बा मिसाली है। भारत का गंडापुर के बयान को फैटफ में इस्तेमाल करना पूरी पीटीआई के लिए शर्मनाक है। इन लोगों का सबसे बड़ा मसला यही है कि ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का अपने बयान में कहना था, अल यमीन गंडापुर के लिए शर्मनाक और काबिल फ़िक्र है। इस जमात से मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत और कामयाब सिफारतकारी से पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलवाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का जवाबी इक़दाम, फैटफ में भारत को एक्सपोज करने का ऐलान। कहा कि भारतीय हुकूमत ने फैटफ में उनके बयान को सियाको सबाक से हट कर पेश किया। भारत पाकिस्तान और ख़िते के अंदर होने वाली दहशत गर्दी में मुलव्वस है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अवाम और फोर्सेस बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रही हैं। मोदी को पैगाम है कि पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। अल यमीन गंडापुर का बयान तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना था कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान में भारतीय जराइम का वाज़ेह सबूत है। जराइम की तवील फहरिस्त भारत को फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की राह हमवार कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में भारत की दहशत गर्दाना सरगर्मियों के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में भारत का हाथ है। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी, नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर इजाफा, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान में पहली बार गाड़ियों के लिए आलमी मयार के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लाजमी करार देने का फैसला। वफाकी काबीना ने पहली मोटर व्हीकल्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्ट की मंजूरी दे दी। खिलाफ वर्जी पर कैद और करोड़ों रुपए जुर्माने की सजाएं होंगी। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी फरोख्त करने पर 1 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना। खराब पुर्जे या गाड़ी को रिकॉल न करने 2 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना होगा।
कराची में शहरी ने 2 बच्चों को समंदर में फेंककर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। कराची के साहिली मकाम दो दरिया पर एक शख्स ने पहले 2 बच्चों को समंदर में फेंका और फिर अपने आप को भी गहरे पानियों के हवाले कर दिया। दोनों बच्चों की उम्र 5 से 6 बरस के दरमियान थी। लाशों की तलाश जारी, एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। खैबर में कौमी शाहराह पर ट्रॉलर ने सड़क किनारे सोए मजदूरों को कुचल दिया। 3 मजदूर मौके पर जान बहक, 4 जख्मी हो गए। जख्मी मजदूरों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जान बहक मजदूरों का ताल्लुक शिकारपुर से है और खजूर की मजदूरी के लिए आए थे। पुलिस हुकाम का कहना है हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ट्रॉलर को तहवील में ले लिया गया है। अफगान माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के बगैर वीज़ा पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी आयद 31 अगस्त तक आर्जी दाखिला दस्तावेज पर आमद और रफ्त की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन जारी। अफगानिस्तान के साथ तमाम तिजारती गुज़रगाहों पर आज से तलाक हो गया। 1 साल कबल वज़ारत तिजारत ने अफगान ड्राइवर्स को वीज़ा हासिल करने की मोहलत दी थी। कोयटा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ आज से कार्रवाई शुरू करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर कोयटा की ज़ेरे सदारत अहम इजलास अफगान महाजरीन के इनखला का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना था POR कार्ड होल्डर्स को क़याम के लिए 31 जुलाई की डेड लाइन दी गई थी जो ख़त्म हो गई। अब कार्रवाई होगी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने सैलाबी तबाही से 2-4-37 देहात को आमद और रफ्त ज़दा करार दे दिया है। गिलगित के 9, दियामुर 12 और गज़र 5, स्कर्दू 4, गांचे 2 और शगर 3 नगर और खरबंग ज़िले के एक गांव को आफत ज़दा करार दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। 20 जुलाई से कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात का तखमीना 15 से 20 अरब रुपए है और अब तक 10 अफराद जाँ बहक और 1 दर्जन लापता हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के राबते पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 अगस्त का दौरा करेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरात, ननकाना साहब, फैसलाबाद, मियांवाली, मुल्तान में बादल बरसेंगे। पिशावर, सवात, चित्राल, हरिपुर, सवाबी, कोहाट, लकी मरवत में भी बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहने की पेशगोई। शाम के औकात में थरपारकर, उमरकोट और साहिली इलाकों में बारिश मुतवक्के। दी, सवात, शांगला, मानसहरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, केरक, हिंगू के बरसाती नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। कश्मीर, मरी और गिलियात में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान है। शहर कायद में आज भी सुरमई बादलों का राज बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी दिन भर मामूल से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। तेज़ समुद्री हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी और बारिश मुतवक्के है। कराची में हवा में नमी का तनासुब 76% है जबकि हवाएं 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद। खरीदो फरोख्त रोक दी गई। अशिया की खरीदो फरोख्त का अमल आज से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। इदारे के तमाम स्टोर से अशिया खुदोनोश और दीगर सामान वेयर हाउसेस को मुंतकिल। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का ERP सिस्टम भी आज से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। 31 जुलाई के बाद इस सिस्टम के जरिए की जाने वाली किसी भी खरीद और फरोख्त पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कौमी असम्बली की नशस्त N 129 लाहौर पर ज़िमनी इंतखाब 18 सितंबर को होगा। सीनियर सियासतदान मियां अजहर के इंतकाल के बाद नशस्त खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी 4 से 6 अगस्त तक जमा करवाए जा सकेंगे। इंतखाबी निशान 26 अगस्त को अलॉट किए जाएंगे। 18 सितंबर को पोलिंग होगी। CEO के इलेक्ट्रिक मुनस अलवी को ओहदे से हटाए जाने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई मोतज़िब का फैसला मुअत्तल कर दिया। आज मुनस अलवी अपनी वकील के हमरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने CEO को हुक्म दिया कि वो जुर्माने की रकम 25 लाख रुपए नाज़िर सिंध हाई कोर्ट को जमा कराएं।
अदालत ने सूबाई मोहतसिब और शिकायत कुनंदा को नोटिस भी जारी कर दिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मनशियात स्मगलिंग और ख़रीदो फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 9 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 75,61,000 रुपये से ज़ायद मालियत के 76 किलो मनशियात बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। पाकिस्तानी सैटेलाइट चीन से कामयाब लॉन्चिंग के बाद मुकर्ररा मदार में दाखिल। कौमी खलाई इदारे की तस्दीक। पाकिस्तान ने अपना रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के ज़ेजियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से कामयाबी के साथ खला में भेजा था। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा कि ये सैटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, आफात से निमटने, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में इनक़लाब बर्पा करने के लिए इमेजिंग की सहूलत फराहम करेगा। मौसमियाती तब्दीली, पानी के वसाइल के इंतज़ाम, ज़राई नक्शा साजी और जंगलात के कटाव की निगरानी में भी अहम किरदार अदा करेगा। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए। तदरीसी अमल का आगाज़। पहले रोज़ तलबा की हाज़िरी मामूल से इंतहाई कम रही। कराची में बेशतर निजी स्कूल 4 अगस्त से खोलने का ऐलान। महकमा तालीम सिंध ने 1 जून से 31 जुलाई 2025 तक तातीलात का ऐलान किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया भारत के मौजूदा फैसलों से मायूस। रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर भारत पर शदीद रद्द-ए-अमल दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट का इंटरव्यू। कहा, भारत रूस से खाम तेल खरीद कर उसे फरोख्त करता है। भारत ने खुद को एक जिम्मेदार आलमी ताकत के तौर पर पेश करने में नाकामी दिखाई है। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक भारत के रवैये ने अमरीका के साथ उसके तिजारती ताल्लुकात को गैर यकीनी बना दिया है। भारत की अदम दिलचस्पी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने की धमकी के बाद भारत का F-35 लड़ाका तैयारा खरीदने का इरादा मौकूफ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी हुकाम को मुतला कर दिया। भारत अब अमरीका से कुछ दीगर तिजारती अशिया की खरीदारी बढ़ाने पर गौर कर रहा है ताकि ताल्लुकात मुतवाज़न रहें। कीमतें कम करो वरना कार्रवाई होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दवासाज कंपनियों को धमकी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी करदा 17 दवासाज कंपनियों को खतरसाल। ट्रंप ने दवासाज कंपनियों को कहा कि अगर आपने ताउन ना किया तो हम अमेरिकी खानदानों को अद्वियात की कीमतों में जारी बदउनवानियों से बचाने के लिए अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का फ़लस्तीनी रियासत को जल्द तस्लीम करने का इंदिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना महज कुछ वक्त की बात है। हतमी तारीख नहीं दे सकते मगर ये बहुत जल्द होगा। मज़ीद कहा कि हमास की अरगमानियों के साथ सलूक और मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत में हमास के मुमकिन किरदार जैसे मसाइल ऑस्ट्रेलिया के लिए संजीदा रुकावटें हैं। बरतानिया में मुसलसल दूसरे बरस मोहम्मद लड़कों का सबसे मकबूल नाम बन गया। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मोहम्मद का नाम 2016 से ही टॉप 10 में शामिल रहा। 2022 में ये दूसरा और 2021 में 5वां मकबूल तरीन नाम था। बरतानवी मीडिया का कहना है कि ये रुझान मुल्क में बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी और इस्लामी रिवायात की अक्कासी करता है, जहाँ वालिदैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की निस्बत से बच्चों का नाम मोहम्मद रखना पसंद करते हैं। पहले T20 मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 14 रन से शिकस्त दे दी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लाउडरहिल में खेले जा रहे मैच में वेस्ट इंडियन कप्तान शाय होप ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। साइम अयूब 57, फ़खर जमान 28 रन के साथ नुमाया रहे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका चैंपियंस 1 रन से फाते। सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने पहले बैटिंग मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 186 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने 7 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बनाए। पाकिस्तान चैंपियंस और जनूबी अफ्रीका चैंपियंस का फाइनल कल होगा।
ट्रंप का सदारती फिटनेस अवार्ड्स की बहाली का ऐलान, बेहतरीन खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा जाएगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी अवाम को सेहतमंद ज़िंदगी फराहम करने के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। जो ख़वातीन स्पोर्ट्स और ओलंपिक्स में पीछे रह गई हैं, उन्हें आगे लाने के लिए भी इस्लाहात की जा रही हैं। और ऑस्ट्रेलिया के बारिशी जंगलात में साइंसदानों ने नई किस्म का कीड़ा ढूंढ निकाला। कीड़े के पर तितली जैसे जबकि दिखने में टिड्डे जैसा है। गैर मामूली जिसामत के कीड़े को देखकर लोग हैरान रह गए। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का कहना है कि मुल्क में दरियाफ्त किया जाने वाला यह अब तक का सबसे वजनी कीड़ा है, जिसका वजन 44 ग्राम और लंबाई तकरीबन 16 इंच है।